नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में वजीर IT तारक रामाराव ने गरीबों के लिए तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट से मुताल्लिक़ पहली फ़ाइल पर दस्तखत की। सेक्रेटेरिएट की तीसरी मंजिल पर वाक़ अपने चैम्बर में तारक रामाराव ने खिदमात का आगाज़ कर दिया। बादशाह ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख इस्तेफ़ादा कुरिंदगान के लिए डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के मसले पर उन्होंने जायज़ा इजलास भी तलब किया। रियासती सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से पहले वज़ीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने यज्ञम किया। इस मौके पर पंडितों ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में किए गए इस यज्ञम में उनकी रहनुमाई की और आशीर्वाद भी दिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि मन की बात प्रोग्राम ने एक इनकलाब बर्पा किया है। राजभवन में मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड को दिखाने का इंतज़ाम किया गया था। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम में आम आदमी के कारनामों, अवाम और हमारे हीरोज़ की कुर्बानियों का अहाता करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने इस प्रोग्राम में हर मसले का अहाता किया है। It has created a revolution, and every last Sunday 11 o'clock, the whole country expects the great voice of our Honorable Prime Minister, mentioning about the achievers, mentioning about the great services by the common man, and mentioning about the sacrifices of our unsung heroes and the sacrifices of the people for the betterment of other co-brothers and sisters. And when I was searching what to talk about our Honorable Prime Minister's, what subject and all he has covered, and usually we can search the subjects, but we have to search what not he has mentioned. He has mentioned everything in the world. But Honorable Prime Minister searched the achievers, the people who did service to the mankind, and he mentioned about them. And it is a great thing in the world. Our Honorable Prime Minister is the only leader who has communicated to more than 100 crore people by the radio. सेक्रेटेरिएट में V6 चैनल और वेलगू अखबार को आने की इजाज़त नहीं दी गई। इस चैनल के साथ साथ अवामी नुमाइंदों और अवामी तंजीमों ने इस पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। इस सरकारी प्रोग्राम को कवर करने की V6 को इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की गई। मिन्होल में गिरकर मरने वाली लड़की मोनिका की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। ये आखिरी रसूमात बंसीलाल पेट में वाक़ शमशान घाट में अंजाम दे दी गई। बाज़ अहम कायदीन ने लड़की की आखिरी रसूमात में शिरकत की। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात हलसानी श्रीनिवास यादव ने लड़की के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर लड़की के वालिदैन ने उन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से लड़की की मौत हुई है। प्रिंसेस ज़रीन मुकरम ने सालार जंग म्यूज़ियम में तुर्की के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद से मुताल्लिक़ अहम दस्तावेज़ात और तस्वीर पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की शान और इसके कारनामों पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली। His Majesty Abdul Majid II prepared the document while in France, wherein he appointed my father, even before he was conceived, by my grandmother to be his successor to the imperial office by the Caliphate, even only by title, and for the Nizam, Mir Osman Ali Khan, to be the interim Caliph of Islam until my father was of age and ready. World War II ended and the world became a different place. This crucial link, document to the title of the imperial Caliphate, eventually made their way back to Hyderabad into the hands of my great-grandfather, His Exalted Highness Mir Osman Ali Khan,
in 1955 during the visit of His Majesty King Saud bin Abdulaziz Al Saud, who honored my great-grandfather, His Majesty Abdulmajid II, when the Turkish government refused to allow his burial both in Turkey but also conspired to prevent his mortal remains from coming to Hyderabad, where a tomb was constructed for him by my grandmother, Princess Durrashidwar Sultan. The document was subsequently deposited with Ahmed's grandfather, Lieutenant Colonel Sayyid Muhammad Imuruddin Khan, the military secretary of my great-grandfather. Today, these documents are under the custodianship of the Ranuma Idil Khan family, where they were found by Ahmed's grandfather before Ahmed's parents married. आप जान के बहुत खुश होंगे कि खलीफा अब्दुल मजीद सानी जिसका जिसमें खाकी हैदराबाद लाने की काविशें चल रही थी और 10 साल तक जिसका जिस्म सुपुर्द खाक ना हो पाया, उनके चीज़ें, उनके आर्टिफैक्ट्स, उनके लेटर्स और उनके पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ आज सैयद अहमद खान साहब सदर रहनुमाए दक्कन ने हैदराबाद में इसकी एग्जीबिशन रखी। तो सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं सैयद अहमद खान साहब का, सदर रहनुमाए दक्कन का, कि उन्होंने हम तमाम को इस खुश नसीबी का मौका दिया कि हम खलीफा अब्दुल मजीद जो आखिरी खलीफा है खिलाफत उस्मानिया के और जो पहले खलीफा है तुर्किश रिपब्लिक के, तुर्किश नेशन के, कि उनके आज हमें ना नायाब आर्टिस्टिक उनके कलेक्शंस देख रहे हैं, उनके एग्जीबिशंस देख रहे हैं और नायाब फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर एक्साइल के देख रहे हैं। तो मैं तमाम हजरात को गुजारिश करता हूँ कि वो थालियों से शुक्र अदा करें सैयद अहमद खान साहब का। ऑपरेशन कावेरी जारी है। जिद्दा से मजीद 229 अफराद को बेंगलुरु लाया गया। सूडान में दाखिली लड़ाई के सबब वहां फंसे हिंदुस्तानियों को महफूज तौर पर मुल्क वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 2000 हिंदुस्तानियों को वतन महफूज तौर पर लाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। जेईई मेंस के नताइज में रेफरेंस कॉलेज के तलबा ने काफ़ी बेहतर मुजाहरा किया। कॉलेज के डायरेक्टर पूर्णचंद्र राव ने कहा है कि तलबा ने काफ़ी मेहनत की थी, जिसके नतीजे में ये बेहतर मुजाहरा हुआ है। माधापुर अयप्पा सोसाइटी में वाक़ इस कॉलेज में तलबा को तहनीत पेश की गई। ऑल इंडिया ज़ुमरे में बेहतर रैंक्स तलबा ने हासिल किए हैं। मियारी तदरीस और तलबा की कोशिशों के नतीजे में ये बेहतर नताइज सामने आए हैं। 2023 జేఈఈ ఫలితాలు రావడం ఈరోజు ఆ జేఈఈ ఫలితాల్లో మా విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా కూడా మంచి ప్రతిభ కనపరచడం అనేది జరిగింది. మాకు దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఈ ఎగ్జామ్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకునేటటువంటి ఎగ్జామ్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 5తో పాటు 50 లోపల 5 ర్యాంకులు రావడం జరిగింది. అండ్ చాలామంది విద్యార్థులు 100% మార్కులు సాధించడం, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి మా ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి చాలామంది విద్యార్థులు దగ్గరగా 33 మంది విద్యార్థులకు 99% కంటే ఎక్కువ మార్కులు రావడం జరిగింది. అదే లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ ఇయర్ కూడా దగ్గరగా 750 మంది విద్యార్థులు అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళలో చాలా వరకు కూడా మనకందరూ అడ్వాన్స్డ్లో మంచి ఎలిజిబిలిటీ ర్యాంకు సాధించేటటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 1 మంత్ కూడా ఇదే విధంగా హార్డ్ వర్క్ కంటిన్యూ చేసి మరింత ప్రామిసింగ్ రిజల్ట్స్ అడ్వాన్స్డ్లో కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పి మేము మీకు కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. మాకు ఈ జర్నీలో సహకరించినటువంటి స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్కి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. कांस्टेबल्स के फाइनल इम्तिहान में शिरकत के लिए लम्हा आखिर में आने वाले कई उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज़ के करीब जल्दबाजी करता हुआ देखा गया। कई उम्मीदवार ताख़ीर से बचने के लिए भागते हुए आए, जो इम्तिहानी मरकज़ के बाहर लगाए गए बोर्ड में अपना नाम देखने लगे। उनकी रहनुमाई वहां मौजूद पुलिस अमले ने की। टास्क फोर्स ने फर्जी मुलाजिमतों के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 ऑर्गेनाइजर्स और 32 टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 लैपटॉप्स, 148 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। डीसीपी स्नेहा मेहरा के मुताबिक मुलजिमीन जीसी गौड़, गणेश और श्रवण, जिनका ताल्लुक सिद्दीपेट ज़िले से है, ने फर्जी कॉल सेंटर शुरू किया। उन्होंने मुलाजिमतों की फराहमी के नाम पर बेरोज़गारों को धोखा दिया। मुलजिमीन ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश से नौजवानों का तखर्रुर किया और 50 लाख रुपए की रकम वसूल की। ఆల్రెడీ దాని మీద నిన్న 2 FIRs కూడా బుక్ అయింది. అది కొంతమంది విక్టిమ్స్ అమౌంట్ చిన్న ఉంది చెప్పేసి మనకి అప్రోచ్ అయ్యారు. దాని మీద మనము ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే అట్లాగే మొత్తం ర్యాకెట్ నడుస్తుంది తెలిసింది. ఫర్దర్ వర్కౌట్ చేస్తే ప్యాటర్న్ ఏముంది, ఆల్రెడీ సిమ్ కార్డ్ సప్లయర్ కూడా ఉన్నారు.
మొత్తం ఆ సిమ్ కార్డ్స్లో ఇంకా కాల్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి తెలిసింది. సో అట్లాగే కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి దట్ టెల్స్ ఇట్స్ అ ఫ్రాడ్. ఇది విక్టిమ్స్ చాలా స్టేట్స్ నుంచి ఉన్నాయి, ఇంకా టెలికాలర్స్ కూడా 4 స్టేట్స్ నుంచి ఉన్నాయి, ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ కేరళ. అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇప్పటివరకు తెలిసిన 1900 ఉన్నారు, కానీ ఎక్కువ మంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు అట్లా తెలిసింది మనకు. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం అది డీటెయిల్గా బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ స్టడీ చేసి వాళ్ళు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి మనం స్టడీ చేస్తే తెలుస్తుంది. చక్రధర్ గౌడ్ అరెస్ట్ అయ్యారు, అసోసియేట్ గణేష్ అండ్ శ్రవణ్ కూడా అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇప్పటి వరకు తెలిసిన చక్రధర్ గౌడ్ మీద పాత కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి తెలిసింది, కానీ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। बाजपुर में पहाड़ी इलाकों में पहाड़ियों के गिरने के वाकयात के सबब इस सड़क को ओहदेदारों ने बंद कर दिया और इस इलाके में चौकसी इख्तियार की जा रही है। 4 धाम यात्रा के हिस्से के तौर पर बद्रीनाथ को कई अफराद जाते हैं। निल्लूर जिले में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। ये वाकया जिले के उलवा पाला कौमी शाहरा के करीब आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। ये कंटेनर चित्तूर से विजयवाड़ा की सिमत जा रहा था। इसके साथ ही चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया और इससे उतर गया, जिसके नतीजे में उसकी जान बच गई। इस ड्राइवर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक कंटेनर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर में रेसलर्स का एहतजाज जारी है। WFI सरबरा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये धरना जारी है। बृजभूषण पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर FIR दर्ज की गई है। एहतजाजियों ने भूषण से इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अवामी मसाइल की समाअत के बजाय बेइज्जती के बारे में वावेला मचाने पर वजीर आजम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कर्नाटक के नवलगुंड में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने अवाम के मसाइल की यकसुई पर कभी तवज्जो नहीं दी है। जाफरानी जमात ने अफरात ज़र में कमी, मुलाजिमतों की फराहमी में नाकामी और दीगर मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इसके बजाय वजीर आजम मोदी सियासी झगड़ों के बारे में बात करते हैं। कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां GST है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद GST। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। MLA के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बजाय उनके पिताजी एक परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि तुम हमें छू नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार सिर्फ करेंगे नहीं, खुल के करेंगे, सिर्फ लूटेंगे नहीं, खुल के लूटेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है आज आपको कि आपको लूट सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां किस लिए आई हूं? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि आप कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। निकाल दीजिए इनको। आपको हर स्तर पर लूटा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 100 एम्स बन सकते थे आपके लिए। जाने कितने किलोमीटर मेट्रो बन सकती थी, कितने हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, शिक्षा के संस्थान बन सकते थे। और कहां गए ये पैसे?
लूट के कहां गए, किसकी जेब में है, किसके घरों में है, आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको मन बनाना है कि आप किस तरह की राजनीति इस देश में चाहते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।